It was a great pleasure to receive the parliamentary delegation from India. As I mentioned before, we have a long-standing relationship between Egypt and India, and we value this relationship. It's a historical one, but we need to further enhance our trade, investment, economic relationship to match the excellent political relationship between our two countries and our two leaders. And there is a political will in the two sides in order to further enhance our cooperation. As I mentioned during the meeting, we would like to further enhance our parliament-to-parliament delegation, people-to-people contacts, and of course our position vis-à-vis terrorism is very clear, and we always against terrorism. We suffered a lot from terrorism, and of course, as I mentioned, we need to deal with the root causes of the problem, and of course applying holistic approach. Our position is very, very clear that we condemn with all harshest words the terrorist attack in Kashmir, and we cannot tolerate with any attacks on civilian innocent people. And we have convened here the joint meeting between our two countries in fighting terrorism, and we will continue to talk, we will continue to cooperate. We are very happy and welcoming the de-escalation now between India and Pakistan, and we will continue to exert our intensive efforts in order to de-escalate. President Sisi spoke with Prime Minister Modi. He spoke also with the Prime Minister of Pakistan. I spoke with my brother Jay, and also with my brother, the Foreign Minister of Pakistan, for de-escalation and, of course, keeping the policy of neighborhood, and fighting terrorism is essential, is very important. And of course, there is no military solutions to the crisis, but always a peaceful one. And we are very, very happy and satisfied with the ceasefire and with the de-escalation now. Honorable High Court ने डायरेक्शन दिया स्टेट को केस डायरी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उसका बेल का जो सुनवाई हो 5 तारीख को हो सके. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि उसका जो करेक्शनल होम में बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रहा है उसको देखा जाए, उसको बेसिक एमिनिटीज सुविधा उसको दिया जाए. और ऑनरेबल हाई कोर्ट ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंट जितना भी एफआईआर है जो शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में लॉन्च किए हुए हैं, या इन सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर कोई फ्रेश एफआईआर ताकि ना हो, इसका भी एक तो डायरेक्शन दिया है. एंड सब्सिक्वेंट एफआईआर टू बी स्टॉल्ड. देखिए, द मैटर इज सब जुडिस. ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है स्टेट को पूरा चीज ठटोल के देखने के लिए, और उनका जो बेसिक एमिनिटीज है वो सब फुलफिल किया जाए. तो अभी वो स्टेट का ऊपर है, और कल एक तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपका जेल सुपर लर्नेड सीजेएम अलीपुर का पास रिगार्डिंग दिस फैसिलिटीज बीइंग अवेल्ड बाय शर्मिष्ठा और नॉट. 5 तारीख को है. हम लोग आशा कर रहे हैं कि उस दिन शायद हम लोग को बेल मिल जाए. The response was very positive because no country wants to tolerate terrorism anymore in whatever form or shrouded in whatever way it comes. Nobody has the tolerance, and there are countries which are affected.
Like yesterday in Spain, Spain was also, affected by terrorist attacks. So everybody understands that, we have to end terror, and it's not going to just stop. Nobody is isolated from terror. So definitely everybody, has condemned what happened in Pahalgam, and they stand with India in fighting against terror. That was the message we're bringing back also. And your response to national delegation, we have met them. Now what will No, we have put requests, and I'm sure the Foreign Affairs Ministry also will continue its dialogues. We want, at least the delegation which we reached out, we want our message to be taken to other countries in the European Union, and we want to end terror. It's just not on behalf of India. We want to end terror, throughout the world. बहुत अच्छी मीटिंग रही. फीडबैक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को देना था, वो हो गया है. सभी डेलीगेशन मेंबर्स ने अपने व्यूज शेयर किए हैं, और मेरे ख्याल से मंत्री जी को पहले ही पता था कि मिशन से भी फीडबैक आया होगा इनके पास, पर डायरेक्टली फर्स्ट हैंड डेलीगेट्स ने भी शेयर किया. सर, उनका फीडबैक पे क्या रिएक्शन रहा? नहीं, अच्छा रहा. उन्होंने कहा कि बहुत सफल रहा आपका यात्रा. बिल्कुल, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे वो पूरे हो गए, और उन्होंने डेलीगेशन मेंबर्स, खासतौर से लीडर को भी बधाई दिया. सर, इसके बाद जो पीएम से मीटिंग है उसके बारे में कुछ बातचीत हुई है? नहीं, हमें उसके बारे में अभी सूचना नहीं है. काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हुई थी कि भाई एक गगनदीप सिंह उर्फ गगन नाम का व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ टच में है. उसी के अंदर कार्रवाई करते हुए एसपी सिटी रिपुतपन सिंह संधू, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुरिंदरपाल नागरा, इन्होंने ऑपरेशन लीड करते हुए इसको काबू किया जाता है. और इसकी जब इससे 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, जब उसकी जांच की गई तो उसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के नंबर सामने आए हैं. और जो पाकिस्तानी प्रो खालिस्तानी एलिमेंट है गोपाल सिंह चावला, उसके साथ भी इसकी बात होनी जो है तस्दीक हुई है. ये तकरीबन 5 साल से ये पता लगा कि 5 साल से ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ टच में था. बाकी जो इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा वो आपके साथ बाद में शेयर की जाएगी. ऑपरेशन सिंदूर जब शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की तरफ से इसको एक्टिवेट किया गया था कि भाई आर्मी की मूवमेंट बारे, आर्मी की पोस्ट बारे, या जो अपनी एयरफोर्स है उसकी मूवमेंट बारे इंफॉर्मेशन शेयर की जाए. तो इसके मोबाइल को चेक करने से पता चला है कि ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, काफ़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहा था. वीडियो बना के भी भेज रहा था, फोटोज भी भेज रहा था. तो उस दौरान ये पूरा एक्टिव पाया गया. ये आईएसआई और पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर दोनों के साथ ही टच में था. मेन इसका हैंडलर गोपाल सिंह चावला था, और इसका पासपोर्ट जो है 2018 का बना हुआ है. बाकी हम उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल निकलवा रहे हैं कि ये फॉरेन कंट्री में या पाकिस्तान से ट्रैवल किया है या नहीं किया है. इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि तकरीबन 20 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये टच में था. अब तक जो उसके अकाउंट्स की डिटेल हम डिटेल में मंगवा रहे हैं. जो मोबाइल चेक करने से मुढले तौर पे पता लगा है कि तकरीबन 7 से 8 बार इसके खातों में जो है पैसे बाहरले मुल्क से आए हैं. अब तक जो हमने चेक किया उसमें यही है कि भाई पिछले 3 महीने के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्टिविटी बढ़ गई थी. उसकी मोबाइल का फोरेंसिक करवा रहे हैं. उससे पहले का जो डेटा है वो फोरेंसिक जांच में सामने आएगा. फिर पता चलेगा कि भाई ये स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहा था या फिर 5 साल से ही एक्टिव था. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इसके खिलाफ एफआईआर करी गई है. बाकी इसका रिमांड आज हासिल किया जाएगा और बाकी कार्रवाई की जाएगी. अभी तक तो ये बात सामने नहीं आई कि इसने कंसाइनमेंट वगैरह उठाई हो. खुद बस ये नशा करने का आदी था, एडिक्ट था, और अपने आप के लिए सेवन कर रहा था. बाकी तफ्तीश में हम देखेंगे कि ये सामान भी मंगवाते हैं नहीं. I don't want to put words into either our parliamentarians' mouths or those of our British friends, but I think there was a great deal of receptivity to the message. There is great sympathy and understanding in the UK for what India has gone through in terms of our long and painful journey with cross-border terrorism that has emanated from Pakistan-controlled territory and the state of Pakistan. There is a great sense of understanding of the anger and hurt in India that this scourge just doesn't go away. That said, of course, the UK has its own position. It's a sovereign government. It will take its own decisions. But in
in the last decade and more, we see a steady evolution as our relationship with the UK has gained weight and traction and strategic dimensions. The UK's approach to challenges that have long persisted in South Asia has been much more understanding of our concerns, much more willing to respect the fact that these are problems that have to be solved by India and Pakistan, and indeed all other problems in the region by the region, and that India's rise is in broader terms in the greatest benefit of the Indo-Pacific region and the world as a whole. So that sense comes through to all our parliamentarians. We have come here, as far as I can understand from our parliamentary leaders, the people of India's representatives, that we are not here to seek favor from anybody. We are here to explain our position. We are here to point out what the people of India feel. And of course, we welcome the fact that our partners understand what we have to do, but we will do what we need to do to secure the people of India. Any government of India, the current government in particular, are committed and will always remain committed to do whatever is necessary to secure our people. And that message has landed. जो हमें संदेश देना था, शांति का संदेश देना था, हमें जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का संदेश देना था, हमें 140 करोड़ भारतीयों का संदेश यहाँ पहुंचाना था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर संदेश पहुंचाना था। वो जैसे जैसे हम एक एक देश गए, वहाँ के लोगों को मिले, वहाँ के लीडरशिप्स को मिले, सभी जगह पर भारत के प्रति एक आत्मीयता, एक संवेदना सभी लोगों ने प्रकट की और इन सभी देशों में माननीय मोदी जी का प्रभाव दिखाई दिया। इतने सालों तक जो घनिष्ठ संबंध भारत ने इन सभी देशों के साथ बनाए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि सभी लीडरशिप से मिलने के बाद हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा उनको समझाने में। वो जानते थे कि भारत किस प्रकार से इस टेररिज्म से लड़ता आ रहा है, भारत किस प्रकार से इतने सालों तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फेस करता आया है और किस प्रकार से टेररिज्म से लड़ते हुए भी भारत चौथी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ हम गए वहाँ इस टेररिस्ट हमले को, इस एक्ट को कंडेम करने का काम हर एक देश ने किया। सियरा लियोन और लाइबेरिया में तो पार्लियामेंट में मौन रखने का काम भी इन देशों ने किया। मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। भारत ने जिस प्रकार से संबंध इन सभी देशों के साथ बनाए रखे हैं, उसका फायदा आज इस डेलीगेशन को हुआ, इस दौरे के दरमियान हम सभी को हुआ। आज हमारा इंग्लैंड का हमारी यात्रा पूरी हो रही है। अभी यहाँ इंडिया हाउस में हम लोगों ने प्रेस भी की है। आज सुबह हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर से मिले हम लोग। कल हम लोग मिले थे, जो उनके कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन हैं उनसे मिले थे। प्रीति पटेल शैडो फॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिले थे। लेबर पार्टी की जो इंडिया फ्रेंड्स हैं उनसे मुलाकात हुई। आज मिलने जा रहे हैं फिर हम लोग अक्रॉस द पार्टी, और उनके जो जूनियर विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई। ओवरसीज अफेयर्स की गृह विभाग की जो मंत्री उनसे मुलाकात हुई, और बहुत बड़ी संख्या में थिंक टैंक से बातचीत हुई। और वो सभी इस चिंता से हैं जो हम लोग बता रहे हैं कि आतंकवाद एक बहुत ही बड़ा नासूर है, कैंसर है। इससे दुनिया को संभलने की जरूरत है। और हमने एक और बात कही है कि आज उनको IMF से लोन मिलता है, उनको वर्ल्ड बैंक से मिलता है, बाकी फंडिंग होती है। तो ये फंडिंग आतंकवाद के लिए जा रही है, वेपन खरीदने के लिए जा रही है, गरीबों की चिंता हो रही है? इसकी पूछवाई तो होनी चाहिए ना। हाँ, तो ये कहा है। तो जो एक बात और सबों ने कही कि संसदीय दल ऑल पार्टी का जो आया है, ये बहुत ही नई शुरुआत है और अच्छी बात है।
The 5 countries visit is coming to the end today now, and we are leaving Kuala Lumpur. It has been a successful trip altogether. We could meet so many persons, cross-section of the societies in all these countries, state actors, non-state actors, think tank, Indian community, etc. So what we have figured is that there have been some confusion with regard to the occurrence in Kashmir and also the ceasefire. So we could convey the message of India, what actually happened then, and the intensity of the cross-border terrorism, how it is going to affect the whole nation, not only India. This point also was underscored, and they always appreciated it. एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी साइंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ MOU करेंगे, जो कि अपने लेटेस्ट इनोवेशन आइडियाज़ उसको दिल्ली सरकार के साथ मिल करके प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, दिल्ली सरकार ने अभी IIT कानपुर के साथ में एक MOU साइन किया, जो कि क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन पे आधारित है, जिसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की मंजूरी करी है, और बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। Minister Goyal came with a great business delegation from India, more than 50 companies, so it means a lot, first to us, because we are living in very troubled times in terms of global trade, and what we do believe in, India and France, is that we have to strengthen our ties. And how we can do that? Both ways. First, European Union and India are working on a free trade agreement, and of course we are fully supporting the European Commission and the Commissioner Šefčovič that is working very well with Minister Goyal, and I'm pretty optimistic on the fact that we can have an agreement in the coming weeks, coming months, because we have to showcase the world that we do believe in trade, in a freer trade, and not in a trade war. So this is what we agreed on with Minister. And on the other way, we have to foster as well our bilateral relationship between France and India. So it means more cross-investment, more cross-trade, but also on a cultural, linguistic, educational side, we have to foster and to strengthen our ties. So it is possible, it's just a question of willingness. And I hope that all the friendship that President Macron and Prime Minister Modi already showcased the world last years will, of course, help our bilateral relationship to go deeper now. And I told Minister Goyal that we were very glad to welcome Prime Minister Modi during the last AI summit in Paris in February. And I hope there will be maybe a comeback visit of President Macron in the coming years in India. मैं तो गुड लक कहूँगा जी पंजाब की टीम नूं। उस दिन भी मैं तो 1:30 पौने 2 बजे तक मैच देखता रहा, तो पंजाब की टीम ने बहुत अच्छा किया, तो अज फाइनल है अहमदाबाद च, तो तुसीं भी देखियो, थोड़ा जिहा सपोर्ट करो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने यहाँ पर सिविलियन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की थी, किस तरह से उस समय फायरिंग यहाँ की जा रही थी, आपकी क्या जवाबी कार्रवाई थी? जैसे उधर से फायर आ रहा था और हम भी उसका जवाब फायर से दे रहे थे, और ऐसे अंधाधुंध फायर हो रहा था और उनको मजबूर कर दिया हमने जहाँ से भगाने के लिए।
अभी किस तरह से आप अलर्ट हैं? कई सारी यहाँ पे यात्रा भी होने वाली है, अमरनाथ यात्रा, आप किस तरह से अलर्ट हैं? हम 24 घंटे अलर्ट है, जहां सुरक्षा कर रहे हैं। हम उनको निश्चिंत बोल रहे हैं कि अपनी यात्रा करें, हम उनके लिए अलर्ट है। जम्मू कश्मीर उनके बगैर नामुकम्मल है और जो पीडीपी का मानना है हमेशा कि जम्मू कश्मीर बंदूकों से हल नहीं हो सकता, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिटेंट की बंदूक सोल्यूशन नहीं है, यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए और वो पॉलिटिकल प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहने बाइज्जत तरीके से अपने कश्मीर में नहीं आते, यहाँ बसते नहीं है और उसमें एक रोल करेंगे। थैंक यू सो मच। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। आज आप देख सकते हैं काफी संख्या में टर्नआउट है, बहुत लोग आए हुए हैं, तो सब अच्छे से मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इंतजाम पूरे हैं, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, यहाँ लंगर सेवा भी उपलब्ध है, तो सभी तरीके के इंतजाम पूरे हैं यहाँ पे एंड सब अच्छे से मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम यही होप करते हैं कि और भी लोग आएंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और अच्छे से सबको दर्शन होंगे, सब अच्छे से मेला सेलिब्रेट कर पाएंगे। I think it's very exciting. I was honoured to meet the Honourable Prime Minister. I think the fact that he was prepared to attend the IATM reinforced the vision that he has personally and the Indian government has for the development of the industry here. So very exciting. Great to hear him firsthand talk about where he sees the industry developing into the future. मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम जो है ना, वो यंग टीम हम भेज रहे हैं और हमने उसको शुभमन गिल को कप्तान बनाया है। यंग टीम जा रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसका हमें एडवांटेज मिलेगा और हमारी टीम में नए लड़कों को जो है परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल टूर होगा इंग्लैंड वाला और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। जिस तरह से आईपीएल और बाकी मैच बढ़ती जा रही है, तो उसके क्या क्रिकेट का स्तर, किस तरह से लोग नए जुड़ते जा रहे हैं? अभी लोगों में बहुत एपेटाइट, अभी लोग और क्रिकेट भी देखना चाहते हैं, तो हमें तो करना पड़ता, पूरे साल क्रिकेट चलाना पड़ता, क्योंकि लोगों की मांग इतनी होती, बायलैटरल टूर्स करने वो सारे कंट्रीज की मांग होती, फिर बीच में हमारा आईपीएल का सीजन चलता है। मैं पूरा ठीक है, ठीक आप पूरा खोलो। थैंक यू। आप भूमिका बनाओगे पहले थोड़ी? रॉ मेटेरियल मैं खास तौर से मोमा से लेती हूँ और अभी तो जो हम लोग ऑर्गेनिक का जो यहाँ पे डिहाइड्रेट का काम करता है, लोगों ने सुना है या सोशल मीडिया में देखने के बाद सब कॉन्टेक्ट बार बार आ रहा है दूसरों से। और मैं ऐसा भी करती हूँ, जो मेरा यहाँ पे जो आप 8-10 काम करते हैं लेडीज़ लोग, बट मेरा एरिया कम से कम मेरी ग्रुप में 50 से ऊपर लेडीज़ लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले तो बहुत सामान है जो बिक्री करना चाहते हैं, तो भी खरीदने के लिए कोई नहीं होता और वो कुछ लोग तो कच्चे की तरह फेंकते हैं। लेकिन अभी ये स्मेल शुरू होने के बाद तो सब अच्छा से चल रहा है, जो बिक्री नहीं हो रहा है, जो फार्मर हो वो भी खुश हो रहा है। मेरी दीदी यहाँ पे काम करती है, उसने बोला घर में रह के क्या करेगा, इधर आके थोड़ा कुछ सीखो और तुम्हारा भी फायदा होगा, तो ऐसा बोल के दीदी ने मुझे बुलाया। बहुत अच्छा लगा और नॉलेज भी बहुत आया। When I was asked about losses on our side, I said these are not important.
the results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals. So that's an even-sided match. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. इधर ही खड़े रहो। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक